So we are starting with a case study of a chapter called Share and Share Capital. Very important chapter. अब देखिए, this question being asked in 2020 for 3 marks. Question क्या लिखा है? Now KBC Limited filed PS3 with register of companies. PS3 मतलब return of allotment. Mumbai as required under Companies Act 13 with late fees as it was not filed within the due date. The ROC on examining the form found it is necessary to call for further information. He gave a notice to the company directing it to furnish the required information within the prescribed time. अब आपने ROC में फॉर्म फाइल किया, फॉर्म में एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं था, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो ROC ने कंपनी को बोला, नोटिस इशू किया एंड रिक्वायरिंग द कंपनी to provide the information within the prescribed time. Now the company furnish only a part of the required information, discuss the consequences of the action in such circumstances under provision of Companies Act 13. अब देखो इसमें क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. यहाँ पे अगर आरओसी चाहे तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट करके कैंसिल कर देगा. क्लियर? तो इसमें क्या दिया है? नो इट बेसिकली सेज दैट नो केबीसी लिमिटेड, फैक्ट ऑफ द केस क्या बोलता है? दैट केबीसी लिमिटेड file PS3 that is return of allotment with ROC Mumbai as required under Companies Act with late fees क्योंकि ड्यू डेट पे फाइल नहीं हुआ था. The ROC on examining the form found it necessary to call for additional information. Now he gave notice to company directing to furnish the required information within prescribed time. The company furnished only part of the required information. Now this is the fact of the case which has been taken from the question itself. अब देखो, अब एप्लीकेबल सेक्शन रेगुलेशन रूल्स क्या बोलता है? नो इट सेज दैट नो रूल 10(2) of the company's registration office and fees rules provides that where the registrar on examining any application or e-form or document find it is necessary to call for further information or find such application or e-form to be defective or incomplete in any respect. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर ई फॉर्म जो है अगर वो इनकम्प्लीट है अगर ई फॉर्म जो है वो अगर डिफेक्टिव है, तो ऐसे केस में व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट यहाँ पे नो ही शैल गिव इंटीमेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन कॉल्ड और डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस बाय ईमेल ऑन द लास्ट इंटीमेटेड ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन और द कंपनी विच हैज़ फाइल्ड सच एप्लीकेशन और ई फॉर्म और डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है, सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन? तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे केस में व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट आपको डॉक्यूमेंट में व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट आपको ऐसे केस में जो आरओसी क्या करेगा, जिसने फॉर्म फाइल किया था, कंपनी ने फॉर्म फाइल किया था, उनको इंटीमेशन दिया जाएगा नाउ एंड रिक्वायरिंग दैम कि वो इनकम्प्लीटनेस को ख़त्म करें, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करें विद इन प्रिस्क्राइब टाइम. Directing him or it to furnish such information or to rectify such defect or incompleteness or to resubmit such application e-form document within the prescribed time. अब यहाँ पे now rule 10(4) of companies registration office and fees rules provides that in case where such further information called for has not been provided or has been furnished partially, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन पार्शली प्रोवाइड किया गया है या तो प्रोवाइड ही नहीं किया, और डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस हैज नॉट बीन रेक्टिफाइड और हैज नॉट बीन रेक्टिफाइड पार्शली और हैज नॉट बीन रेक्टिफाइड एज रिक्वायर्ड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, द रजिस्ट्रार shall either reject or treat the application or e-form or document as the case may be as invalid in the electronic record and shall inform the person or the company. मतलब यहाँ पे अगर मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं किया तो उस ई फॉर्म को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. यहाँ पे क्या लिखा है? तो इन केस reject the application or treat the application or e-form as invalid. अब so in this case यहाँ पे
आरओसी इस फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा एंड फॉर्म को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा. सो इन लाइट ऑफ द अफोरसेड प्रोविजन अकॉर्डिंगली वेयर एनी डॉक्यूमेंट is recorded as invalid by the registrar, the document may be rectified by the person or company by only fresh filing along with payment of fees and additional fees at the time of fresh filing without prejudice to the liability under companies act. मतलब यहाँ पे आरओसी उस फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा और अगर रिजेक्ट किया तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा कि आपको फिर फ्रेश फाइलिंग ही करना पड़ेगा. बिना फ्रेश फाइलिंग के आपकी वो मिस्टेक रिजॉल्व नहीं होगा. लेकिन जस्ट बिकॉज आपने फ्रेश फाइलिंग कर दिया विद एडिशनल फीस, तो इसका मतलब क्या पेनल्टी नहीं आएगा? पेनल्टी आएगा, लेकिन फ्रेश फाइलिंग एडिशनल फीस के साथ करना पड़ेगा. अब नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2017 फॉर 4 मार्क्स. अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है. नाउ इट सेज दैट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 the board director of Care Automation Services Limited has issued shares to employees under employee stock option scheme. मतलब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने शेयर्स इशू किया है अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. नाउ Mrs. Excellent has recently joined the board of the company and asks you, the secretary of the company, as to what detail to be disclosed in the director's report for the year ended 31st March 17. Now in this regard advise her. अब यहाँ पे मिसेस एक्सीलेंट जो है उन्होंने बोर्ड ज्वाइन किया रिसेंटली. उन्होंने आपसे पूछा है कि भाई डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है, दैट इनपुट शी नीड फ्रॉम यू बिकॉज यू बीइंग द कंपनी सेक्रेटरी. तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट सेज दैट नाउ, अब यहाँ पे क्या लिखा है? नाउ परसुएंट टू रूल 12(9) of company's share capital debenture rules 14, the board of directors shall inter disclose the director's report the following detail of the employee stock option scheme. अब देखो 4 मार्क्स का है, अगर आपने अराउंड 6-8 पॉइंट भी लिख दिया तो मोर देन सफिशिएंट है. तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? नाउ पहला, कितने ऑप्शन ग्रांट किए, कितने ऑप्शन वेस्ट हो गए, कितने ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए. नाउ कितने नंबर ऑफ शेयर्स अराइज हुए एज द रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन. ऑप्शन कितने लैप्स हुए हैं, एक्सरसाइज प्राइस, वेरिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑप्शन, मनी रियलाइज बाय एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस इन फोर्स. अब एम्प्लॉयज वाइज डिटेल दिया जाएगा ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड टू, तो KMP को कितने ऑप्शंस ग्रांट किए गए हैं. नाउ एनी अदर एम्प्लॉय हु रिसीव अ ग्रांट ऑफ ऑप्शन इन 1 year of the option amounting to 5% more of the option granted during that year. तो साल भर में जितने भी ऑप्शंस ग्रांट किए गए हैं, मान लो साल भर में 100 ऑप्शंस ग्रांट किए गए हैं, तो उसमें से 5% निकालो तो 5 हो गया. तो अगर किसी एक एम्प्लॉय को 5 और मोर ऑप्शंस मिले हैं तो उसका डिटेल दिया जाएगा एम्प्लॉय वाइज. इसके अलावा आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज हु वर ग्रांटेड ऑप्शन ड्यूरिंग एनी 1 year equal to or exceeding 1% of the issued capital of the company at the time of grant of option. तो जब कंपनी ऑप्शन ग्रांट कर रहा था उस समय कंपनी की जो भी कैपिटल था उसका 1% निकालने का. और अगर वो एम्प्लॉयज़, अगर कंपनी में एम्प्लॉयज़ को 1% और मोर ऑप्शंस ग्रांट किया गया है, इन दैट केस व्हाट इज बीइंग सेड, तो उन एम्प्लॉयज़ का डिटेल भी प्रोवाइड किया जाएगा. अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एक्चुअली क्वेश्चन केस स्टडी नहीं है. इट इज़ जस्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग, वेयर बाय दे आर आस्किंग यू टू प्रोवाइड द डिटेल्स. सो दे आर आस्किंग टू प्रोवाइड द डिटेल्स बेसिकली दैट व्हाट इंफॉर्मेशन हैव टू बी प्रोवाइडेड इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट. क्लियर? नाउ अब देखो, नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2017 फॉर 4 मार्क्स. अब क्या लिखा है? Now ABC Limited hold 75% equity shares of DEF Limited and control composition board director of DEF Limited. तो ABC के पास DEF का 75% कैपिटल है और DEF की डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है.
फर्दर क्या दिया है, नाउ एबीसी लिमिटेड गोज फॉर पब्लिक इशू फॉर रेजिंग फर्दर कैपिटल। अब एबीसी लिमिटेड, सी दिस थिंग, तो एबीसी लिमिटेड है, डीईएफ लिमिटेड है, इसके पास डीईएफ का 75% होल्डिंग है, तो प्रिसाइसली यहाँ पे एबीसी क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी, एंड डीईएफ क्या हो गया, सब्सिडियरी कंपनी। अब एबीसी लिमिटेड goes for public issue for raising further capital. Now board of director of ABC Limited allot 10% of issue to DEF Limited. अच्छा, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी को शेयर्स अलॉट कर दिए, हो सकता है क्या? If you remember section 19, it says that subsidiary cannot hold shares in holding company, एंड अगर कोई भी शेयर्स अलॉट करता है होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडियरी कंपनी तो वो अलॉटमेंट अपने आप में वॉइड हो जाएगा। Now referring to the provision companies that examine the validity of the board decision to allot 10% shares 10% issue to DEF Limited. Now DEF Limited holds certain number of shares as legal representative of deceased member of ABC Limited and has right to vote at general meeting of ABC Limited in respect of such shareholding. Will this right be affected by issue of 10% to DEF by ABC Limited? अब यहाँ पे this entire concept talks around section 19, जिसमें तीन कंडीशन में सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग में शेयर्स होल्ड कर सकता है। अब देखो, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो फैक्ट ऑफ द केस मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड होल्ड 75% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ डीईएफ एंड कंट्रोल कॉम्पोजिशन बोर्ड डायरेक्टर ऑफ डीईएफ। एबीसी लिमिटेड गोज फॉर पब्लिक इशू फॉर रेजिंग फर्दर कैपिटल। Now board of director of ABC Limited hold 10% of issue of DEF Limited. Now DEF Limited holds certain number of shares as legal representative of deceased member of ABC Limited and has a right to vote at the general meeting of ABC Limited in respect of such shareholding. तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ये सेक्शन 19 के आजू बाजू है। अब सेक्शन 19 का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता एंड होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट एज पर सेक्शन 19(1) ऑफ कंपनी द 13 नो कंपनी शेल ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू इट्स नॉमिनी होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी and no holding company shall allot or transfer its shares to any of its subsidiary company, and any such allotment or transfer of shares of a company to its subsidiary company shall be void. Now अब इसमें क्या लिखा है फर्दर, now provided that nothing in this subsection shall apply to a case, तो यहाँ पे तो प्रोवाइडेड दैट ये जो सेक्शन 19 में लिखा है ये एप्लीकेबल कब नहीं होगा, फर्स्ट वेयर द सब्सिडियरी कंपनी होल्ड सच शेयर्स एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो अगर सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग के शेयर्स होल्ड कर रहा है एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, और where the subsidiary company holds such shares as a trustee, तो ट्रस्टी के रूप में होल्ड कर रहा है तो चलेगा। थर्ड, where the subsidiary company is a shareholder even before it become a subsidiary company of the holding company, मतलब सब्सिडरी बनने से पहले कुछ शेयर्स थे अपनी होल्डिंग कंपनी में तो चलेगा। Now provided further that subsidiary company referred to in preceding proviso shall have a right to vote at the meeting of the holding company only in respect of shares held by it as a legal representative or trustee as referred to in clause A and B। मतलब यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी सिर्फ वोट कर सकता है उन शेयर्स के लिए विच इज दे आर होल्डिंग एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज ट्रस्टी। तो क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन आएगा कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉटमेंट कर सकते 10% शेयर्स का? आंसर इज नो। सो इन लाइट ऑफ द अफोरसेड
ABC Limited cannot allot 10% shares of public issue to DEF Limited. Allotment of shares to DEF shall be void. Clear? Further, अब यहाँ पे अब DEF अब यहाँ पे क्या DEF वोटिंग कर सकता है फॉर द शेयर्स they are holding as legal representative? Yes or no? तो यहाँ पे they can always vote. So यहाँ पे so DEF Limited so DEF Limited shall have right to vote at general meeting of ABC Limited in respect of shares held as legal representative. Clear? So this is what have to be answered in this particular question. अब यहाँ पे now what is being said, अब ये क्वेश्चन 2019 में आया for 3 marks. क्या लिखा है क्वेश्चन? Now Green Commercial Limited, an unlisted company, has made a preferential offer of shares for consideration other than cash. मतलब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है? प्रेफरेंशियल इशू किया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. A question has raised by the account department as to the valuation of consideration at allotment and the manner of treatment of non-cash consideration in the books of account. Now, as a practicing company secretary, advise the company with reference to the provision of Companies Act. अब ये चीज़ समझो. अब यहाँ पे प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश में अगर शेयर्स अलॉट किए गए तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो अगर नॉन कैश कंसिडरेशन इज इन द नेचर ऑफ एसेट है विच इज़ सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन तो उसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे. और अगर नॉन कैश कंसिडरेशन इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो वहाँ पे उसको एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करेंगे. तो यहाँ पे क्या लिखा है? सो द फैक्ट ऑफ द केस, तो पहला फैक्ट ऑफ द केस एप्लीकेबल सेक्शन क्या है? तो पहले फैक्ट ऑफ द केस क्या लिखा है? दैट ग्रीन कमर्शियल लिमिटेड an unlisted company has made a preferential offer of shares for consideration other than cash. Second, a question has raised by the account department as to the valuation of consideration at allotment and the manner of treatment of non-cash consideration in the books of account. अब देखो तो यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन रेगुलेशन रूल क्या बोलता है? Now pursuant to section 62(1)(c) of Companies Act read with Rule 13, Company Share Capital Debenture Rules. Now where shares or other securities are to be allotted for consideration other than cash, the valuation of such consideration shall be done by a registered valuer who shall submit a valuation report to the company. तो यहाँ पे valuation जो है वो registered valuer करेगा. ना वो क्या करेगा? Who shall submit the valuation report to the company giving justification for the valuation. Now, where the preferential offer of shares is made for non-cash consideration, such non-cash consideration shall be treated in the following manner in the books of account of the company. तो यहाँ पे now what is being said? Where the non-cash consideration takes in the form of depreciable or amortizable asset, now it shall be carried to the balance sheet of the company in accordance with the accounting standard.
तो यहाँ पे अगर ये डेप्रिशिएबल एमोटाइजेबल एसेट है तो इसको बैलेंस शीट में लिया जाएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकेंड, वेयर क्लॉज 1 इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब अगर वो डेप्रिशिएबल और एमोटाइजेबल एसेट नहीं है। नाउ what is being said, now it shall be expense as provided in the accounting standard, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसको एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करेंगे। नाउ कैरी टू द बैलेंस शीट एक्सपेंस। सो यहाँ पे what is being said that the practicing company secretary can advise the green company limited accordingly, मतलब दिस इज द एडवाइस दैट हैव टू बी गिवन कि अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है, एमोटाइजेबल एसेट है तो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और अगर नहीं है तो उसको एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करेंगे। आप देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2019 फॉर 5 मार्क्स। क्या लिखा है, द शेयर कैपिटल ऑफ राणे इज 30 करोड़। कंपनी कैपिटल कितनी है, 30 करोड़। नाउ रसल इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द कंपनी वांट टू कॉम्पनसेट हिम बाय इशूइंग शेयर्स फॉर सप्लाइंग टेक्निकल नो हाउ विदाउट एनी कॉस्ट। तो वो एमडी के रूप में अपॉइंट हुआ है एंड कंपनी उसको शेयर्स अलॉट करना चाहता है। नाउ टू कॉम्पनसेट हिम फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ। नाउ इन दिस कंटेक्स्ट, वेदर द कंपनी इज अलाउड टू अलॉट सच शेयर्स। अब ऐसे ही समझो, यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देने के लिए अगर आप शेयर्स दे रहे हो देन इट कैन बी इन द नेचर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी ये शेयर अलॉट कर सकता है, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, इज अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर रिक्वायर्ड बाय फॉर इशूइंग सच शेयर। आंसर इज येस, आपको क्या करना पड़ेगा, बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। नाउ इफ फाउंड eligible to allot such share, what will be the quantum value that can be allotted? So there is a limit which has been given under rule 3 rule 8 कि कितना आप स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हो। सो इट इज़ 15% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज़ लेसर विच एवर इज़ हायर, लेकिन वो जो अमाउंट है वो 25% ऑफ पोस्ट पेड अप इक्विटी कैपिटल से ऊपर नहीं हो सकता एट एनी टाइम। Now can Russell sell such allotted shares in the market? तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। Now will the amount that he receive on sale of shares consider part of his remuneration? तो रसल बिंग द एमडी, तो वो जो शेयर्स बेच के जो पैसा मिलेगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। लेट्स सी दिस थिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं कि क्या कंपनी ये शेयर्स अलॉट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले अपने को एप्लीकेबल सेक्शन लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू स्वेट इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट विच इज द डेफिनेशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स है क्या, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स सच इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर एम्प्लॉयज एट डिस्काउंट। तो या तो डिस्काउंट पे इशू करते हैं या तो और फॉर कंसिडरेशन other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property right, value addition by whatever name called। तो यहाँ पे कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ को दे सकता है डिस्काउंट पे या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में, नॉट फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके लिए। क्लियर। अब सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी दैट क्या बोलता है, दैट अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर। तो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर दे सकता है, स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर दे सकता है फॉर द क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। अब क्या कंडीशन है, पहला, द इशू इज ऑथराइज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। तो कंपनी जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है। सेकेंड, नॉट द रिजोल्यूशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन एंड द क्लास ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज टू होम सच स्वेट इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड। तो यहाँ पे
कंपनी क्या करेगा, रिजोल्यूशन में, स्पेशल रिजोल्यूशन में आपको बताना पड़ेगा कि कितने शेयर अलॉट हुए हैं, मार्केट प्राइस क्या है, क्या कंसिडरेशन लिया गया है, डिस्काउंट पे किया गया है, नॉन कैश कंसिडरेशन है, और कौन से डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ को दिया गया है। थर्ड, it says that where the equity shares of the company are listed on recognized stock exchange, the sweat equity share are issued in accordance with the regulation made by SEBI. तो SEBI रेगुलेशन के हिसाब से होगा अगर लिस्टेड कंपनी है, and if are not listed, the sweat equity share are issued in accordance with such rules as may be prescribed. Now, so what is being said, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि क्या कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, आंसर इज यस। सो यस, सेक्शन 54 कंपनी दैट परमिट इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ एक्सेट्रा as the contribution made by the employee director result in increased profit of company for the number of years, sweat equity share provide a new form of adequate return. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, आंसर इज यस। सो दैट इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। अब देखो, अब सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, दैट इज अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर रिक्वायर्ड फॉर इशूइंग सच शेयर्स, आंसर इज यस। सेक्शन 54 बोलता है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या लिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेबल सेक्शन या रूल्स क्या बोलता है, दैट एज पर सेक्शन 54(1) ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी मे इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ द क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड इफ फॉलोइंग कंडीशन बीइंग सेटिस्फाइड। तो अगर कंपनी स्वेट इक्विटी इशू करना चाहता है तो फॉर द क्लास ऑफ शेयर्स विच ऑलरेडी बीन इशूड, तो वहाँ पे इशू कर सकता है। कंडीशन क्या है, जो इशू है, नाउ क्या लिखा है, द इशू इज ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी, तो कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा। सेकेंड, द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज नंबर ऑफ शेयर्स, current market price, consideration, and the class of directors or employees to whom such equity share are to be issued. तो यहाँ पे तो रिजोल्यूशन स्पेसिफाई करेगा, रिजोल्यूशन में मार्केट प्राइस, कितने शेयर अलॉट किए हैं, किसको इशू किया गया है, क्या कंसिडरेशन है, दो डिटेल हैव टू बी प्रोवाइडेड। थर्ड, अगर इक्विटी शेयर्स लिस्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो जो स्वेट इक्विटी शेयर है इट शुड बी एज पर सेबी रेगुलेशन, तो जो भी सेबी का रेगुलेशन है, और अगर शेयर्स लिस्टेड नहीं है तो इट शुड बी एज पर द रूल्स। क्लियर। अभी एज पर रूल 8(1) ऑफ शेयर कैपिटल, अ कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सेबी रेगुलेशन स्वेट इक्विटी शेयर shall not issue sweat equity shares whose director employees at discount or for consideration other than cash for providing know-how, making available right in the nature of intellectual property, value addition by whatever name called, unless, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक लिस्टेड कंपनी नहीं है तो लिस्टेड कंपनी तो सेबी रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है तो स्वेट इक्विटी शेयर कब इशू कर सकता है, unless the issue is authorized by special resolution passed by the company in general meeting। तो कंपनी को स्वेट इक्विटी के लिए जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्लियर। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, सो द कंक्लूजन सेज कि क्या कंपनी यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, आंसर इज यस। तो यस, सेक्शन 54 रेड विद रूल 8(1) शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल स्टेट्स द स्पेशल रिजोल्यूशन शैल बी पास ऑथराइजिंग द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। नाउ विच मीन्स दैट सेकेंड क्वेश्चन में क्या था कि क्या अपने को शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, आंसर इज यस, कंपनी हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब देखिए, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ फाउंड एलिजिबल टू अलॉट सच शेयर व्हाट इज द क्वांटम ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर दैट कैन बी अलॉटेड, तो कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे what is being said that as per rule 8(4) company share capital debenture rules, company shall not issue sweat equity shares for more than 15% of existing paid up capital in a year, or shares of the issued
value of 5 crores whichever is higher, मतलब 15% of existing paid up equity capital, मतलब existing है, प्री इशू का जो कैपिटल होगा उसका 15% और 5 crores whichever is higher, provided that the issuance sweat equity shares in a company shall not exceed 25% of the paid up equity capital company at any time, मतलब at any time किससे ऊपर नहीं हो सकता, 25% से ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन स्टार्टअप कंपनी में ये कितने परसेंटेज तक हो सकता है, 50% तक. सो प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ स्टार्टअप कंपनी may issue sweat equity share not exceeding 50% of its paid up capital up to 10 years from the date of incorporation or registration. तो स्टार्टअप कंपनी में ये लिमिट जो नॉर्मल कंडीशन 50% है, स्टार्टअप में लिमिट कितनी हो जाती है, नॉर्मल में जो 25% है स्टार्टअप में कितनी हो जाती है, 50%. Now, so in this case, what is being said? So in this case, what is being said that in the given case, as the paid up capital of the company is 30 crores, hence he can allot. कंपनी की कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन में कितना दिया है कैपिटल, 30 करोड़. तो कितना स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हैं, तो 15% ऑफ 30 करोड़ और 5 करोड़ विच एवर इज हायर. तो यहाँ पे स्टेप 1, तो 15% ऑफ 30 करोड़ और 5 करोड़ विच एवर इज हायर. तो ये कितना हो गया, 5 करोड़. अब यहाँ पे सो दिस इज 1 पॉइंट एंड स्टेप 2, क्या ये 25% से ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे सो 5 करोड़ और 25% ऑफ 35 करोड़ विच एवर लेसर, तो कितना हो जाएगा, 5 करोड़ और 8.75 करोड़ विच एवर लेसर, मतलब 5 करोड़. So is equal to 5 करोड़. मतलब कंपनी 5 करोड़ का स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है. तो क्या लिखा है, सो इन द गिवन केस एज पेड अप कैपिटल 30 करोड़, हैंस ही कैन अलॉट विथ 15% ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर. तो यहाँ पे विच एवर हायर निकालने के बाद तो ये 5 करोड़ आ गया. अच्छा, इसके बाद अगर अपने को और आगे चेक करना है कि अगर 5 करोड़ इशू किया है तो क्या वो 25 से ऊपर तो नहीं जा रहा है, तो ये भी चेक कर सकते हैं. तो स्टेप 2 में तो 5 करोड़ और 25% ऑफ 35 करोड़, 35 कहाँ से आया, 30 करोड़ पहले का था, 5 करोड़ ऐड किया तो 35 करोड़ हो गया, उसका 25%. तो विच एवर लेस है, मतलब 5 करोड़ इज वैलिड, क्लियर, एंड कैन बी अलॉटेड, क्लियर. So this is how the limit have to be calculated. अब यहाँ पे can Russell sell such allotted shares in the market. अब यहाँ पे concept lock in का है, तो इसमें क्या दिया है, so applicable section क्या बोलता है. Now it says that as per rule 8(5) of company's share capital and debenture rules, तो यहाँ पे 8(5) of share capital and debenture rules, the sweat equity shares issued to directors and employees shall be lock in. तो जो sweat equity shares है, ना जो sweat equity shares है ना, वहाँ पे क्या बोला है, that as per rule 8(5) of company share capital and debenture rules, sweat equity share issued to directors or employees shall be lock-in or non-transferable for a period of 3 years from the date of allotment
and the fact that the share certificate are under lock-in and the period of expiry of 3 years shall be stamped in bold and mentioned in other prominent manner on the share certificate. मतलब सिंपल वर्ड में कि आपका जो शेयर्स अलॉट किया जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स में, now it shall be subject to lock-in. Three years from the date of allotment. Now अब यहाँ पे क्या बोला है? So it says that in the given case the sweat equity shares allotted to Russell can be sold in the market only after the expiry of lock-in period of 3 years from the date of allotment. Clear? तो यहाँ पे क्या वो मार्केट में शेयर्स बेच सकता है? आंसर इज नो. अब देखो, अब will the amount that he receive on sale of shares be considered as a part of his remuneration? तो जो शेयर बेच के पैसा आएगा क्या वो उसका रेम्यूनरेशन माना जाएगा? आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. अब पहले एप्लीकेबल सेक्शन क्या बोलता है? नाउ सो एज पर रूल 810 of company share capital and debenture rules, the amount of sweat equity shares issued shall be treated as a part of managerial remuneration for the purpose of section 197-198 if the following condition being fulfilled. तो जो स्वेट इक्विटी शेयर्स का जो वैल्यू है ना उसको मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाएगा. कब? ना अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो रहा है. पहला, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर को इशू किया गया है, दैट इज कंडीशन 1, एंड दे आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो ये जो स्वेट इक्विटी शेयर दिया गया है ये नॉन कैश कंसिडरेशन में दिया गया है एंड दैट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. वो कब होगा? जब वो नॉन कैश कंसिडरेशन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के फॉर्म में होगा, विच डज नॉट टेक द फॉर्म ऑफ एन एसेट which can be carried to the balance sheet of the company in accordance with the applicable accounting standard. So does not take the form of asset. Now, so what is the conclusion? So conclusion says that yes, as per rule 810, the amount of sweat equity share issued shall be treated as the part of managerial remuneration for the purpose of section 197. Now for the purpose of 197, if the conditions specified therein are fulfilled. तो अगर 197 में जो कंडीशन दी अगर वो फुलफिल हो रहा है कि वो डायरेक्टर मैनेजर को दिया गया है, नॉन कैश कंसिडरेशन दिया गया है एंड दैट नॉन कैश कंसिडरेशन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के फॉर्म में है, तो फिर उसको मैनेजर रेम्यूनरेशन में पार्ट माना जाएगा. क्लियर? सो दिस इज हाउ दिस एंटायर क्वेश्चन हैव टू बी सॉल्व. नाउ अगर वो नॉन कैश कंसिडरेशन डेप्रिशिएबल एसेट हुआ तो फिर वो मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज तब वो एक्सपेंस नहीं बनेगा, तब वो एसेट बन जाएगा एंड दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट. अब यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग, अब ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में आया है फॉर 4 मार्क्स. अब यहाँ पे क्या दिया है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पायस लिमिटेड गिव यू द फॉलोइंग information extracted from the company's financial statement as on 31st March 15. So authorized capital दिया है, paid up capital दिया है, general reserve, DRR. Now board of director by resolution passed at its meeting. So board of director by resolution passed at the meeting decided to go for buyback of shares to the extent of 20% of company's paid up share capital and free reserve. क्वेश्चन ये है कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 20% तक का बायबैक कर सकते हैं? नो, they can do buyback only up to 10% of paid up share capital plus free reserve, and that is paid up equity share capital plus free reserve,
एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। आप देखिए, तो सबसे पहले एप्लीकेबल सेक्शन आएगा, तो यहाँ पे सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, दैट नो कंपनी शैल परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अनलेस, बायबैक को एओ में अथॉरिटी है। सेकेंड, स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास इन जनरल मीटिंग ऑथराइजिंग द बायबैक, तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट व्हाट इज बीइंग सेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई, तो यहाँ पे जो लिखा है ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा, शैल अप्लाई वेयर द बायबैक इज 10% और लेस ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी and such buyback has been authorized by the board by means of resolution passed at its meeting. So अब देखिए, नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, एंड कंपनी मैक्सिमम कितने वैल्यू का बायबैक कर सकता है इक्विटी कैपिटल का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ द बायबैक is 25% or less of the aggregate paid up capital and free reserve। अब देखो, अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन से बायबैक करेगा तो 25% तक बायबैक कर सकता है, लेकिन अगर बोर्ड से कर रहा है तो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब यहाँ पे बोर्ड विदाउट पासिंग शेयरहोल्डर अप्रूवल दे वांट टू डू द बायबैक अप टू 20%, so that is not allowed। तो यहाँ पे क्या लिखा है, provided that in respect of the buyback of equity share in any financial year, the reference to 25% in this clause shall be construed with respect to total paid up equity capital in that financial year। अब देखो, तो यहाँ पे what is the conclusion? So the conclusion says that in the present case, since buyback is up to 20% of the paid up company's paid up share capital and free reserve, the resolution passed by the board of directors need to be approved by the shareholder by means of special resolution at the general meeting of the company। तो यहाँ पे इस resolution में बोर्ड के बाद आपको शेयरहोल्डर का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा by passing special resolution। क्लियर? सो तो बोर्ड रिजोल्यूशन की वैलिडिटी तभी आएगी जब उसको मेंबर अप्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए, now this question being asked in 2018 for 4 marks। क्या लिखा है, NKB Limited wants to purchase its 1 lakh equity shares at 10 each out of the following: unsecured loan 5 lakh, balance of depreciation reserve 3 lakh, securities premium 4 lakh। Examine the value to the above transaction for the buyback of securities। अब कंपनी यहाँ पे बायबैक करना चाहता है 10 लाख रुपए का, 1 लाख इंटू 10, और ये 10 कहाँ से रेज कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन से रेज कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व से एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अब आइडियली देखा जाए तो बायबैक के सोर्सेज क्या होते हैं, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रोसीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड, सबसे पहले एप्लीकेबल सेक्शन रूल्स क्या बोलता है। नाउ so as per section 68(1) of Companies Act, a company may purchase its own shares or the specified securities out of, तो कंपनी बायबैक कहाँ से कर सकता है, ना आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रोसीड्स। नाउ अच्छा, यहाँ पे प्रोसीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड का होना चाहिए, मतलब अगर आपको इक्विटी का बायबैक करना है तो आप इक्विटी इशू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नो बायबैक ऑफ एनी काइंड, no buyback of any kind of shares or the specified securities shall be made out of the proceeds of an earlier issue of same kind of shares or the specified securities। तो यहाँ पे कंपनी बायबैक नहीं कर सकता ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि कंपनी
अनसिक्योर्ड लोन से या बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व से बायबैक नहीं कर सकता, सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम से बायबैक कर सकता है. सो इन द प्रेजेंट केस NKB Limited can purchase its own shares only out of securities premium account and not out of unsecured loan or balance of depreciation fund which is not forming part of free reserve. Clear? Very interesting question. Next one. अब देखो, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में फॉर 4 मार्क्स. क्या क्वेश्चन है? Now Confident Limited has forfeited 50,000 equity share company at the rate of 10 each and the same were reissued. तो कंपनी ने 50,000 शेयर्स 10 रुपये के फॉरफिट किए और उसको रीइशू किया. आफ्टर द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैज इशूड शो कॉज नोटिस टू द कंपनी फॉर डिफॉल्ट in provision section 39 of company that is the action of ROC tenable under the provision of Companies Act. Discuss with the relevant case. अब ये चीज़ देखो, कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया और फिर उसको रीइशू किया, तो क्या ऐसे केस में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने की ज़रूरत है? आंसर इज नो. तो पहले यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस क्या दिया है? तो इट सेज दैट Confident Limited forfeited 50,000 equity share company at the rate of 10 each and same were reissued. After the filing of annual return, Registrar of Companies has issued show cause notice to the company for default of provision of section 39 of Companies Act. तो यहाँ पे what ROC has said कि आपने section 39 का violation किया है. अब section 39 है क्या? Now section 39 is basically allotment के provisions हैं. So allotment of securities by company. Securities by company. Now अब यहाँ पे applicable section regulation rules. अब इसमें क्या दिया है? Now it says that reissue of forfeited share does not require filing of return of allotment. Very important part कि यहाँ पे अगर आप forfeited shares को reissue कर रहे हो तो उसके लिए return of allotment अलग से फाइल करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? In a similar case, Shri Gopal Jalan Company versus Calcutta Stock Exchange Association Limited, the Supreme Court held that the exchange was not liable to file any return of forfeited shares under section 39 of Companies Act where the same were reissued. Now, the court observed that when the shares is forfeited and reissued, there is no allotment. तो जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं और रीइशू होते हैं तो वहाँ पे कोई अलॉटमेंट हो ही नहीं रहा है. in the sense of apportion of shares out of authorized and unapportioned capital and approve the observation. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? that on such forfeiture all that happened was that the right of the particular shareholder disappeared but the shares considered as a unit of the issued capital continued to be exist and was kept in suspense until another shareholder was found for it. मतलब जब आप शेयर्स को फॉरफिट करते हो तो उस शेयर होल्डर का राइट खत्म हो जाता है, लेकिन शेयर्स हैं और वो आप किसी और को भी दे सकते हो. नाउ सो व्हाट इज द कंक्लूजन? सो कंक्लूजन ये कि अगर यहाँ पे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं हुआ है तो ये नॉन कंप्लायंस नहीं है. सो इन द प्रेजेंट केस द शो कॉज नोटिस इशूड बाय आरओसी टू कॉन्फिडेंट फॉर डिफॉल्ट ऑफ प्रोविजन कंपनीज एक्ट इज नॉट टेनेबल. क्लियर? बिकॉज वो अलॉटमेंट ही नहीं है. तो अगर अलॉटमेंट नहीं है तो अलॉटमेंट के प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी का सवाल ही नहीं आता. क्लियर? नाउ सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू हुए हैं सो दैट इज नॉट अलॉटमेंट, एंड इफ दैट इज नॉट अलॉटमेंट तो वहाँ पे पेनल्टी अलॉटमेंट के कंप्लायंस की और नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी नहीं आएगी.
कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट एंड नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी नहीं आएगी। क्लियर? चलो, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन 2018 फॉर 5 मार्क्स। क्या लिखा है? नाउ प्रीमियम लिमिटेड इज कंसिडरिंग बायबैक ऑफ शेयर्स without using any proceed of shares or the specified securities. The company without using any proceeds of shares or the specified securities. अब क्या लिखा है? The balance sheet of Premium Limited shows the following status as on 31st March. तो शेयर कैपिटल दिया है, फ्री रिजर्व दिया है, अनसिक्योर्ड डेट दिया है, सिक्योर्ड डेट दिया है. डिटरमाइन द मैक्सिमम क्वांटम of buyback of share with shareholder approval as on 31st April 2018. तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम निकालना है कि हम लोग कितना बायबैक कर सकते हैं. अब देखो, तो सबसे पहले एप्लीकेबल प्रोविजंस आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नाउ द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ बायबैक that Premium Limited can make as on 1st April 18 in pursuance to section 68 of Company Act 13 is 25% of aggregate of paid up capital and free reserve of the company. So paid up capital and free reserve for 25%. Further provided that the reference to 25% shall be construed. तो जो 25% है उसको किस तरीके से लिया जाएगा? सो द रेफरेंस ऑफ 25% शैल बी कंस्ट्रूड विद रिस्पेक्ट टू इट्स टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर एंड द रेशियो ऑफ एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक शैल नॉट बी मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व. तो यहाँ पे द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ बायबैक. अब यहाँ पे सो अकॉर्डिंगली कंपनी का फ्री रिजर्व कितना है? 5 लाख. सिक्योरिटीज प्रीमियम नील है, तो प्रोसीड ऑफ अदर इशू नील है. टोटल डेट कितना है? सो टोटल डेट इज 5 लाख, 7 लाख एंड 15 लाख, मतलब 22 लैक्स. नाउ अब कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना हो जाएगा? 15 lakhs. So hence, तो यहाँ पे पोस्ट बायबैक debt upon equity cannot be more than 2. So therefore debt upon equity should be less than equal to 2. So therefore equity should be more than equal to half of the debt. अब डेट की वैल्यू कितनी है? 22 lakhs. So therefore पोस्ट बाय बैक इक्विटी कितना होना चाहिए? इक्विटी शुड बी मोर देन इक्वल टू 11 lakhs. क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे hence the maximum fund available for buyback in absence of securities premium and proceeds is 5 lakhs. तो कंपनी कितना पैसा यूज़ कर सकता है बायबैक के लिए? अब कंपनी बायबैक कहाँ से कर सकता है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से, फ्री रिजर्व से एंड प्रोसीड्स ऑफ फर्दर इशू. अब यहाँ पे प्रोसीड्स है नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं, मतलब फ्री रिजर्व से ही बायबैक हो सकता है. नाउ अमाउंट दैट मस्ट बी मेंटेन एज सम टोटल फ्री रिजर्व पेड अप कैपिटल इज हाफ ऑफ टोटल डेट. मतलब आपका इक्विटी कितना होना चाहिए? तो इक्विटी कम से कम 11 लाख का होना चाहिए. अभी कंपनी का इक्विटी है कितना? 15 लाख. तो 15 लाख में से 11 और मोर लाख का होना चाहिए. इसका मतलब कंपनी, तो यहाँ पे सो बायबैक कैन बी मेड अप टू 25%
of paid up share capital freeze that is 3.75 lakhs. तो यहाँ पे तो ये क्या है, तो बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल through special solution, so maximum amount available for such buyback is 25% of paid up share plus free reserve. कितना हो जाएगा, 25% of 10 lakhs plus 5 lakhs, 25 बता 15 lakhs कितना आ गया, 3,75,000. नाउ अब यहाँ पे फर्दर डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट कितना है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन 22, कैपिटल आफ्टर बायबैक. अब 375 का अगर कंपनी बायबैक करता है so capital, so this is 375 and maximum buyback of इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी कितना कर सकता है, इस 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 25% ऑफ 25% ऑफ 10 lakhs तो कंपनी का इक्विटी का बायबैक कंपनी मैक्सिमम कितना कर सकता है, 2,50,000. क्लियर. नो अंडरस्टैंड, कंपनी के पास पैसा कितना है, अमाउंट 3,75,000, लेकिन जब कंपनी मैक्सिमम बायबैक देख रहा है कि वो इक्विटी का मैक्सिमम बायबैक कर कितना सकता है इन एनी फाइनेंशियल ईयर, सो दैट इज इक्वल टू 25%. सो 10 लाख 25% मतलब कितना हो गया, 2.5 lakhs. डेट इक्विटी रेशो पोस्ट बायबैक 2 से ऊपर नहीं हो सकता, मतलब इक्विटी पोस्ट बायबैक मोर देन इक्वल टू हाफ ऑफ डेट होना चाहिए. तो इसका मतलब पोस्ट बायबैक इक्विटी कितना होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 11 lakhs. क्लियर. नाउ सी दिस थिंग, सो यहाँ पे सी देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन. एक इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पोस्ट बायबैक. तो डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक 2 से ऊपर नहीं हो सकता, तो पोस्ट बायबैक इक्विटी कितना होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 11 lakhs. क्लियर. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो दिस इज योर पॉइंट ए दैट हैव टू बी रिमेंबर व्हाइल आंसरिंग. अच्छा एक चीज़ देखना, हम लोग जब यहाँ पे इक्विटी की बात कर रहे हैं, सो देयरफॉर इक्विटी मीन्स, सो देयरफॉर पोस्ट बायबैक इक्विटी मतलब कितना हो गया, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. Now it should be more than equal to 11 lakhs. Clear. अब एंड बिफोर बायबैक मेरा इक्विटी कितना था, दिस इज बिफोर बायबैक. तो यहाँ पे बिफोर बायबैक
इक्विटी, इक्विटी मतलब पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इक्विटी कितना था 10 लाख प्लस 5 लाख मतलब 15 लाख। बिफोर बायबैक 15 लाख था, आफ्टर बायबैक 11 लाख और मोर होना चाहिए। इसका मतलब तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व मिला के कितना कम हो सकता है, मैक्सिमम 4 लाख कम हो सकता है। अब सेकेंड थिंग, नो सेकेंड क्या लिखता है कि अपने पास हम लोग कितना खर्चा कर सकते हैं, बायबैक के लिए हम लोग कितना खर्चा कर सकते हैं, 25% of paid up share capital plus free reserve. So that is the maximum amount and that too by passing special resolutions। तो यहाँ पे लिखा है with shareholder approval, तो मैं 25% तक बायबैक कर सकता हूँ। तो मेरे पास खर्चा करने के लिए पैसा कितना है 3,75,000। लेकिन हम लोग इक्विटी का बायबैक एक साल में चाहे पैसा अवेलेबल है भी तो भी हम लोग मैक्सिमम इक्विटी का बायबैक कितना कर सकते हैं 25%। तो मतलब मैं 2,50,000 से ऊपर का तो बायबैक कर ही नहीं सकता हूँ। अब देखो, अब अगर मान लो मैं 2,50,000 का बायबैक करता हूँ तो मेरा, और ये पैसा मैं निकाल रहा हूँ फ्री रिजर्व से, तो मेरा फ्री रिजर्व 250 से कम हो जाएगा, मेरा कैपिटल 250 से कम हो जाएगा, मतलब मेरा टोटल इक्विटी का डायल्यूशन 5 लाख का हो जाएगा। मेरा कैपिटल 250 से कम हो जाएगा, मेरा फ्री रिजर्व पैसा मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ फ्री रिजर्व से, तो मेरा फ्री रिजर्व 250 से कम हो जाएगा, मतलब दोनों मिला के मेरा डायल्यूशन 5 लाख का हो जाएगा। मेरा बायबैक से पहले मेरा इक्विटी कितना है 15 लाख, बायबैक के बाद कितना होना चाहिए 11 लाख, तो मैं मैक्सिमम डायल्यूशन कितना कर सकता हूँ 4 लाख का। इसका मतलब सो देयरफॉर, तो यहाँ पे कंपनी मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकता है इन दिस केस इज नॉट 2,50,000, दैट्स अ मैक्सिमम। सो इन दिस केस कंपनी मैक्सिमम 2 लाख का कैपिटल कम कर सकता है, विच मीन्स दैट 20,000 इक्विटी शेयर्स of 10 each। So therefore now तो यहाँ पे कंपनी can buy back equity share capital मैक्सिमम 2 लाख, मतलब कितने शेयर्स 20,000 equity shares at the rate of 10 each। नाउ तो कंपनी कितना बायबैक कर सकता है मैक्सिमम 2 लाख का, बिकॉज 2 लाख का बायबैक करेगा तो ही कंपनी कैपिटल 2 लाख से कम होगा, रिजर्व 2 लाख से कम होगा, मतलब 4 लाख का डायल्यूशन होगा। तो उसके बाद डेट इक्विटी रेशो कंपनी का 11 लाख और मोर रहेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखा है पोस्ट बायबैक, now post buyback total capital free reserve must be the half of the debt, मतलब 11 लाख होना चाहिए, that's something we have already calculated। so maximum buyback of equity capital कंपनी कितना कर सकता है 2 लाख का। so therefore in the given case maximum possible buyback is 2 lakh amounting to 20,000 shares of 10 each। clear?
So this is how you have to conclude the answer. Clear? तो पहले पोस्ट बायबैक का कैलकुलेशन निकालना, प्री बायबैक कितना है इक्विटी, पोस्ट बायबैक इक्विटी कितना होना चाहिए, कितना अमाउंट अवेलेबल है, कितना कैपिटल का बायबैक हो सकता है. तो इसका मतलब अगर कंपनी को सिर्फ 4 लाख ही कम करना है, 5 लाख नहीं कम कर सकते, तो कंपनी 2 लाख रुपए का बायबैक करेगा. क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड नाउ. सो इस पूरे पार्ट को ना आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना इन द आंसर. अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है. नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2015 फॉर 4 मार्क्स. नाउ अब यहाँ पे क्या लिखा है, एन एम्प्लॉय of the company purchase certain shares in its capacity of his company through a member of the stock exchange and lodge with the company an application for transfer of shares in the employee name. Now the company refused to execute the transfer on the suspicion that the employee, if admitted as a member of the company, will create nuisance in general meeting and seek access to the records of the company. अब यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर्स परचेज कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज से और कंपनी को बोला कि मेरे नाम पे शेयर ट्रांसफ़र करिए. अब कंपनी ने मना कर दिया, बोले कि भाई ये शेयर होल्डर बन जाएगा, फिर बवाल करेगा जनरल मीटिंग में, रिकॉर्ड्स एक्सेस करेगा. दैट्स वे दे डोंट वांट. नाउ वेदर द कंपनी कंटेंशन विल टेनेबल, दैट इज़ फर्स्ट थिंग. सेकेंड, व्हाट इज़ द रेमेडी अवेलेबल टू द एम्प्लॉय इन दिस केस. तो अगर कंपनी ट्रांसफ़र नहीं करता है तो NCLT के पास जाके आप अपील कर सकते हो. नाउ आप देखो, तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस क्या दिया है. नाउ इट सेज दैट नाउ एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी परचेज सर्टेन शेयर्स ऑफ कंपनी थ्रू मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड लॉन्च विद द कंपनी एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन इट्स एम्प्लॉय नेम. नाउ द कंपनी रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट द ट्रांसफर ऑन द सस्पिशन दैट एम्प्लॉय, इफ एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, विल क्रिएट न्यूसेंस in general meeting and seek access to the record of the company. अब एप्लीकेबल सेक्शन क्या बोल रहा है. नो एप्लीकेबल सेक्शन, नो एज पर सेक्शन 58 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, द सिक्योरिटीज और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी शैल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल प्रोवाइडेड एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट बिटवीन 2 or more persons इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर शैल बी एनफोर्सेबल एज कॉन्ट्रैक्ट. मतलब 58 में क्या बोला है कि जो भी कंपनी के शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं. एंड व्हाट इज बीइंग सेड, एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो है, नाउ जो 2 or more मेंबर्स के बीच में विच इज ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दैट इज एनफोर्सेबल. नाउ as per section 58 subsection 4 of Companies Act, if a public company without sufficient cause refuse to register the transfer of securities within a period of 30 days from the date on which the instrument of transfer or intimation of transmission is delivered to the company, the transferee may, within the period of 60 days of such refusal, or where no intimation has been received from the company within 90 days of the delivery of instrument of transfer or intimation of transmission, appeal to tribunal. मतलब अगर कंपनी ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन को रिफ्यूज़ करता है विदाउट वैलिड रीज़न, तो आप NCLT के पास अपील कर सकते हो. नो रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर share transfer on suspicion that an employee, if admitted as a member, will attend general meeting of the company and may create nuisance by raising irrelevant issues and also obtain access to the record of the company as shareholder is not a valid reason. तो इसको एक वैलिड रीज़न नहीं माना जाता है. सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, तो क्या कंपनी ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ कर सकता है. आंसर इज़ नो. और अगर रिफ्यूज़ किया तो आप NCLT के पास अपील कर सकते हो. नाउ सिंस द क्वेश्चन company in question is a public company, refusal to register transfer on suspicion that the employee in the given case, if admitted as a member, will attend general meeting of the company and may create nuisance in general meeting and seize access to the record of the company as a shareholder is not a valid reason for refusal to register the transfer of shares. Hence, taking into account the above,
the refusal by company to register the transfer shares in the name of employee is not tenable. Second, employee in this case can go for appeal to tribunal against the company's refusal. तो यहाँ पे employee क्या कर सकता है? Employee NCLT के पास जाके अपील कर सकता है. Clear? Now, अब ये जो क्वेश्चन है, now this question being asked in 2020 for 3 marks. क्या लिखा है? P Realtor Limited, a construction limited, and 5 other individuals have incorporated XYZ Builders Limited. So P Realtor Limited 1, a construction limited 2, and 5 other individual 3. तो कितने हो गए? 7. उन्होंने XYZ Builders Limited to construct the commercial complex. P Realtor Limited and A Construction Limited has executed an agreement according to which none of these companies can sell their shares in the new company before the completion of construction of the commercial complex. Due to financial crunch, P Realtor Limited decided to sell its shares in XYZ Builders Limited to PQR Builders Limited. अच्छा, लॉक इन पहले डिसाइड किया था, लेकिन बाद में शेयर्स को बेच दिया. Can A Construction Limited restrain the transfer of share before completion of construction of the commercial complex? अब देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस क्या बोलता है कि यहाँ पे शेयर होल्डर ने लॉक इन क्रिएट किया था, बाद में उन्होंने शेयर्स बेचने का नक्की किया, तो क्या वो बेच सकते हैं? आंसर इज नो. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एनफोर्सेबल है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? So P Realtors Limited, a construction and 5 other individuals have incorporated XYZ Builders to construct a commercial complex. P Realtor Limited, a construction limited, have executed agreement according to which none of these companies can sell their shares in new company before completion of construction of the commercial complex. Not due to financial crunch, P Realtor Limited decided to sell its shares in XYZ Builders Limited to PQR Builders Limited. अब यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन क्या बोलता है? नाउ सो एज पर सेक्शन 58(2) of Companies Act, the securities or other interests of any member in a public company shall be freely transferable provided any contract or arrangement between 2 or more persons in respect of transfer of securities shall be enforceable as contract. मतलब पब्लिक कंपनी में जो सिक्योरिटी तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन अगर किसी अग्रीमेंट के थ्रू 2 और मोर पर्सन ने ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया है, तो वो अपने आप में एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है. सो इन द प्रेजेंट केस, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट बिटवीन पी Realtor Limited, A Construction Limited in respect of transfer of shares of XYZ Limited shall be enforceable as contract. इसका मतलब क्या? A Construction Limited उस ट्रांसफ़र को कैंसिल करने के लिए अप्लाई कर सकता है? आंसर इज yes. And these are the case studies which has been asked from a chapter called Share and Share Capital.